Good evening, sir. Good evening. Hello, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Yeah, so I hope my voice is audible. I'm the hater. Good evening, sir. Good evening. Yeah, so welcome to Nebos IGC training program, and we are on element 3 of Nebos IGC. So, yeah. So just I would like to know, can somebody remember what topic we discussed last time in element 3? Safety culture. Yeah, safety culture. Okay, okay. Yes, yes. Yeah. So can somebody tell the difference between positive and negative safety culture? What is positive safety culture? What is negative safety culture? Or what are the indicators? What are the indicators of health and safety culture? अच्छा मैंने देखा है तो अच्छा बराबर गम क्लियर तो है पर ठीक है पंचायत भी उससे पंचायत हो Okay, so here today we are going to discuss about human factor. I hope my voice is audible. Yes, sir. Okay, now I'll share my screen. तो आप लोग ने एक्सरसाइज भी किया था पॉजिटिव। हेलो सर। यस प्लीज। मैं कुछ क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ से निगेटिव और पॉजिटिव कल्चर के फैक्टर के बारे में, हाँ। सेफ्टी कल्चर का। सर जैसे एक पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इल हेल्थ एस्थेटिक्स, ये जो पॉजिटिव कल्चर में आएगा या निगेटिव कल्चर में आएगा सर? जैसे एक टॉपिक है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इल हेल्थ एस्थेटिक्स। Availability of accident, illness and statistics. Positive, हाँ positive safety culture है. Yes. सर, इसके में आएगा। थोड़ा सा बताएंगे क्या सर, इसके मतलब कैसे, ये क्या कहना चाहता है? मतलब वो कंपनी में वो लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ओके। मतलब कितना इंसिडेंट हो गया, कितना इलनेस हो गया, हम्म। मतलब उसका एनालिसिस करके फाइंड आउट करते हैं। तो जो जो कंपनी में एक्सीडेंट रिकॉर्ड होते हैं, एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं, और जो कंपनी में एनालिसिस करते हैं, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। और सर एक और है, हाँ, वर्कर हैविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेफ्टी पॉलिसी, मतलब वर्कर के पास सेफ्टी पॉलिसी का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ये भी ये क्या पॉजिटिव है. पॉजिटिव है? हाँ, सेफ्टी पॉलिसी का एक्सेस है उसके पास, वो ओके देख ओके सकता है। ये ओके पॉजिटिव। ओके, थैंक यू सर। यस। एनीथिंग एल्स? नथिंग सर, मेन कैरी ऑन। So this is a difference between positive and negative. Positive means towards safe side, towards safe side. Negative मतलब towards unsafe. Like अगर ये पॉलिसी का एक्सेस अगर कोई कंपनी वाले नहीं देते हैं, that means it is negative safety culture. बहुत बार आपको सिनारियो में दिखाई देगा कि कंपनी में। Sir, sorry for inconvenience. Can your voice will be a bit louder? Yeah, yes, yes.
So here about access to the policy, access to the company's policy, that is positive safety culture. Many times in the scenario, you will find that company does not display their policy. पॉलिसी नहीं देते, कोई अगर पॉलिसी पूछता है तो लॉक कैबिनेट में से निकाल के उनको दिखाते हैं ये हमारा पॉलिसी. सो दैट इज नेगेटिव सेफ्टी कल्चर. This company is not communicating their health and safety policy, company is not displaying, and also it is keeping hidden, so that is negative safety culture. So whatever the positive, मतलब जो अच्छा हो रहा है और जो towards safe side है, that is all positive safety culture of the organization. Okay, now we are going to discuss about health and safety. We are going to discuss about the job. We are going to discuss about the human factors. मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जो आदमी को सेफ या अनसेफ काम करने के लिए मतलब उसके लिए जिम्मेदार रहते हैं. Which factors are responsible for making one person safe or unsafe way? So there are three factors. One is job factor, second is individual factor, and that is organization factor. तो ये तीन फैक्टर है जो आदमी को either they make one person safe way or make them work in an unsafe way. So we will see here what is the difference between this job factor, individual factor, and organization factor. Job factor is related to the nature of the job. वो क्या है कि वो कैसे टाइप का काम होता है, जैसे either working at height, working in confined space, or working in night time, or working alone, where isolated area. So there are different hazards, but these hazards are associated with the nature of the job. मतलब ये जो hazard रहता है, जो खतरा रहता है, वो is associated with the nature of the job. Whereas individual factors, hazards are associated with personal characteristics. मतलब सब अभी टीम में सब लोग काम करते हैं, 10 आदमी लोग हैं, लेकिन कुछ हजार्ड रहते हैं वो उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रहते हैं. फॉर एग्जांपल, सम पीपल हैव रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी. कुछ आदमी लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ आदमी लोग शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं, चाहे वो सेफ या अनसेफ हो. इट इज देयर एटीट्यूड, इट इज देयर बिहेवियर. और समटाइम्स सम पीपल आर एग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं. तो दैट इज रिलेटेड टू, वो खतरा है उसके रिलेटेड है. और दूसरा चीज है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस. तो ये सब इंडिविजुअल फैक्टर है. और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर मीन्स रिलेटेड टू द कंपनीज कंडीशन, जो कंपनी का जो कंडीशन है उसके रिलेटेड है. So let's take an example of job factor first. Job factor में क्या क्या आता है? So job factor is related to the nature of task, what type of the task person is doing, whether it's a repetitive task. Repetitive task means same thing person is doing again and again. Or role, related to the role. Sometimes some people are doing job, but there is no clarity in the job. There is no clarity in job description. Or sometimes workload, excessive work hours, excessive long hours, time pressure, or related to the environment. जो काम करते हैं उनका जो माहौल, जब
कोई कोई काम में ज्यादा नॉइस रहता है, नॉइस, वाइब्रेशन, हीट। कभी अभी गर्मी गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, और उसमें भी अगर मशीन का गर्मी होगा तो और भी ज्यादा हो सकता है। देन डिस्प्ले एंड कंट्रोल, जो भी कंप्यूटर या सीसीटीवी या कंट्रोल रूम में जो कंट्रोल लेते हैं, are related to the procedure like permit to work, system of work. So these are all job factor. Now organization factor. Organization factor क्या है? It is not related to job or individual. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। Yes, वो please. लास्ट सर थोड़ा बैक स्लाइड में जाइएगा और पीसीडब्ल्यू के बगल में एसएसडब्ल्यू था सर, इसका क्या मीनिंग है सर पूरा? Yes, please. सर ये प्रोसीजर में पीसीडब्ल्यू के बाद एसएसडब्ल्यू है ना सर, एसएसडब्ल्यू मेथड स्टेटमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा सर एसएसडब्ल्यू का मतलब? SSW is safe system of work. Safe system of work. ओके ओके। जैसे हम लोग आगे देखेंगे एलिमेंट 3 में बहुत सारी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है। SOP है, परमिट टू वर्क भी इज अ टाइप ऑफ SSW, PTW the type of SSW. Okay, now organization factor. Organization factor क्या है? It is affecting the whole organization. मतलब ये ऐसा फैक्टर है जो पूरी कंपनी को अफेक्ट करता है, नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, प्रोसीजर, जैसे हम लोग एक पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे पॉलिसी किसको एक्सेसिबल नहीं है कंपनी में, तो दैट इज विच फैक्टर? ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कंट्रोल में आता है। आदमी लोग तो उसको उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। Usually the top management, it's up to the top management whether they want to display the policy or how they want to communicate. And one is safety culture of the organization. So safety culture can be either positive or negative, which we are discussing. So that safety culture is also part of organization. और पीयर ग्रुप प्रेशर, जैसे हम लोग पीयर ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, आपके जो सहपाठी है उनका जो कभी प्रेशर होता है, जो कलीग्स, और बाद में रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो भी कुछ सुविधाएं कंपनी प्रोवाइड करती है, अगर सुविधा नहीं प्रोवाइड करती है तो भी तकलीफ होता है। और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग है, जैसे कंपनी ट्रेनिंग देता है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, वो भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल में है। दैट इट्स नॉट रिलेटेड टू द जॉब, इट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, that how many training they want to give, work pattern, shift pattern, also competency, selection of the competent worker. So that is also under control of organization. Okay, now now individual factor में बहुत सारी है, लेकिन वो रिलेटेड टू पर्सनल, जो व्यक्तिगत फैक्टर जो उनको बोलते हैं। जैसे परसेप्शन ऑफ द रिस्क, परसेप्शन मीन्स रिस्क को पहचानने की क्षमता। कुछ लोग छोटा भी रिस्क है वो तुरंत पहचान लेते हैं, हिडन रिस्क भी वो पहचान लेते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को कभी अभी सामने रिस्क रहता है तो भी उनको नहीं पता चलता है, इजीली नहीं पता चलता है। मे बी like they do not feel that risk is there. So that also differs from one individual to another individual. Also related to the personality, जैसे हम लोग ने बताया
पर्सनालिटी कैसा है, रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी और नेगेटिव पर्सनालिटी. Then competence. Competence means related to level of education, knowledge, ability, training, experience. And other thing is fatigue. Fatigue means whether the people are tired or under stress, or related to talent or familiarity with the workplace. Then related to physical और mental illness. तो कभी अभी आप लोग ने देखा होगा, कोई बोलते हैं कि इनको ये थोड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ के रिलेटेड, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, या कुछ मानसिक मानसिक बीमारी है, या तो कोई कुछ लोग ड्रग्स, अल्कोहल, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं. So these are all individual factors. जैसे रिस्क पर पहचानने की क्षमता जो हम लोग ने बताया, तो that differs sometimes from one individual to another individual. और उतना ही नहीं, एक ही इंडिविजुअल में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में ये कंडीशन अलग रह सकती है. जैसे इलनेस, बीमारी में आपको पता होगा कि थोड़ा लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, अलर्टनेस का लेवल डाउन हो जाता है. स्ट्रेस, कभी स्ट्रेस रहेगा तो आदमी फोकस नहीं कर सकते हैं. दूसरा फटीग मतलब कुछ थकान वगैरह है, तो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मतलब कुछ पहले का उनको नॉलेज होगा एक्सीडेंट का, या कोई भी खतरा जिन्होंने लिया होगा, तो वो लोग ज़्यादा अलर्ट रहते हैं. Then lack of training means some people get good training, some people they do not get good training. So the level of perception also ranges from one individual to another individual. So how we can increase the perception of the risk? First, we can improve the hazard awareness. We should कंपनी को क्या करना चाहिए, जो भी कुछ खतरा है उनके लिए सब ट्रेनिंग देना चाहिए, जैसे वर्किंग एट हाइट, टॉक्सिक गैस, confined space. Yeah, awareness program, like make them aware about the hazard signs, symbols. Also, they can make sure that adequate lighting is available. कभी अभी क्या होता है कि ये लोग नाइट में भी काम करते हैं. Some people they work in the night time. So even if there is hazard, it will not be visible. कभी अभी क्या होता है कि कोई जगह पे लाइट काम नहीं कर रहा है और रात के लाइट टाइम लोग काम कर रहे हैं. कुछ जगह पे लाइट है, कुछ जगह पे नहीं है. तो जो जगह पे लाइट है वहाँ पे तो अच्छा दिखाई देगा. फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर हाँ, कुछ फ्लोर में कुछ ट्रिप हजार्ड है, स्लिप हजार्ड है, अगर वो हजार्ड है तो भी वो नहीं दिखाई देगा. सो रिस्क परसेप्शन में चेंज फ्रॉम circumstances to circumstances. So this is also one of the popular question. ह्यूमन फैक्टर के बारे में बहुत टाइम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे वो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में आया था. So there are many questions sometimes comes from this human factor. I hope everybody understood the difference between human job factor, organization or individual factor.
Any doubt? Any doubt or question or query? Somebody said. ह्यूमन और इंडिविजुअल फैक्टर में क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा एक बार और से एक्सप्लेन कीजिए। Yes, please. बताइए। सर बैक स्लाइड में दीजिए, और जो ह्यूमन फैक्टर है और एक हाँ, ह्यूमन फैक्टर है, एक ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है, और तीसरा इंडिविजुअल फैक्टर है। यस सर, तो ह्यूमन और इंडिविजुअल में तो क्या मेजर डिफरेंस है, एक बार एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। ह्यूमन या इंडिविजुअल में? हाँ हाँ, दोनों को सर, दोनों को। हाँ, ये ह्यूमन ह्यूमन इंडिविजुअल फैक्टर, अभी ह्यूमन फैक्टर के 3 टाइप है। एक तो जॉब फैक्टर है, हाँ, दूसरा है इंडिविजुअल फैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। अभी इसको ह्यूमन फैक्टर क्यों बताते हैं? ह्यूमन फैक्टर मतलब ये आदमी का बिहेवियर है, आदमी का बिहेवियर है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द जॉब, according to the organization conditions, and according to the individual characteristics. So here, like individual factor is related to the individual. मतलब आप लोग ने देखा होगा कि 10 लोग काम करते हैं, 10 में से सब लोगों का कॉम्पिटिशन लेवल सेम नहीं होता है। किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है या किसको ज़्यादा नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस कम की कमी होती है। तो वो लोग अपने अपने तरह से वो लोग फिर रिएक्ट करते हैं, कुछ खतरा आया तो उसके ऊपर। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत फैक्टर। अभी व्यक्तिगत फैक्टर सबको अफेक्ट नहीं करेंगे, जिनको तकलीफ है, जैसे किसको ऊंचाई से डर लगता है, अगर ऊंचाई में काम करने के लिए उनको दिया गया तो क्या होगा, वो लोग सेफली नहीं कर सकते थे। अभी अभी वो लोग ऊपर जाएंगे, कभी बैलेंस देख के नीचे चक्कर आ जाएगा, बैलेंस भी चला जाएगा तो नीचे गिर सकते हैं। या तो किसने ड्रग्स लिया, अल्कोहल लिया है, दैट इज ऑल्सो इंडिविजुअल फैक्टर। 10 आदमी से ड्रग्स अल्कोहल लिया है, तो दिस फैक्टर्स डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर सबको अफेक्ट करेंगे। मतलब कंपनी ने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी नहीं दिया है तो वो सबको अफेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक आदमी को अफेक्ट करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, क्योंकि किसके पास ही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी नहीं है। हेलो सर। यस प्लीज। सर ये ट्रेनिंग जो लिखा हुआ है इसका क्या है, मतलब नॉट ट्रेनिंग? क्या कहाँ पे है? हाँ, सर नॉट ये ट्रेनिंग मतलब एबिलिटी जिसने के ट्रेनिंग एबिलिटी नहीं के लिए। लिया है, जिसने ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो ट्रेनिंग नहीं लिया है और काम करने जाएगा तो उनको प्रॉब्लम तो आएगा ही। जैसे ऊंचाई पे काम करना है किसको, कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री, और उसको उसने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो उनको तो तकलीफ आएगा ही, दे विल गेट डिफिकल्टी। ये तो एक्सपीरियंस है। अगर कोई आदमी के पास नॉलेज है, ट्रेनिंग है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उनको अकेले काम करने दिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ सकता है। Okay, so I hope is understood. Okay, so with regard to this, we can take some example of we can take some practical examples of workplace.
just a minute. I'm searching. Okay, now I think what we'll do, we will take an example from our company or organization where you are working. So we'll take practical examples so that we can uh, one minute. Okay, we'll take one simple scenario. Simple scenario. मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ. एक सिनारियो है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जॉब फैक्टर क्या है, इंडिविजुअल फैक्टर क्या है और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर क्या है. So by doing this, you will be having more familiarity with this. Okay. I hope everybody's got a question. यस सर. Okay, good.
Jadi tukar nih. हो गया क्या? Ah, मर गया नहीं था। kenapa? अब एक इस तरह का Hah? Kita cuma tahu. अब रनिंग नहीं लगा। दिसंबर आएगा तो 20 पूरा भइला। Kalau cuma jadi, हाँ? kalau cuma jadi. अब आज भी कुछ रिजल्ट नहीं था। Hmm? खाली आलू रख दे लगा। Waktu dia ya. Bisa tukar biar balas mungkin. Atau biri balas untuk hebat tak. रोटी चावल खाए खातिर मांगो करता रहेगा ना हम क्या करूंगा इन लोगों बचा के दे दे मतलब ये खा ले तो उसने साले में श्रवण कर रही हम साला एक कद्दू की रोटी दे देते हैं साला खा के यहाँ से भागा संतो हाँ। मैंने कुकुरों से क्या भगा जाला। हाँ ना तू अपने से चल गया था क्या पहला ये तो देखा खा लगा चल गया तुम नर किया था जनजन के जपना में जो आज कौन तो पूरा रोज खेल वो तो बड़ी जगह वही टाइम पर आई वही टाइम पर आई तो सही बनो टाइम साफ आता है लेकिन ऑन टाइम पर गहन की पीठी पका लो गहन देव तो कभी से हमारा करता कौन तो करता सका नहीं सब्जियां खाकर नहीं चला रहे मुझे तो भाई सब्जियां में सांगत खत्म हो गया चांद को लपेट दो साले ट्यूब को लपेट अरे दिनवा में वो टाइम पर आया बिना में वो टाइम करा वैसे ग्राफिया में दिन में हाँ तो ये पहले का रखा चल रहा है कपड़े में पहले तो जीन्स मटका बात तो क्या तो देखा हो कोई मुंह तर हिंगा तो काट पे नहीं लगा इन तो जान दो से नहीं जाकर बना इनका लगा जीव तो मुझे दिए इना का पर मजा होता है भाग तरह से हेने तरह से हमारा दीदी तो मेरी आवाज फिर नहीं पड़ा तंग नहीं पड़ा ज्यादा दिन ना भूले हमारा ना फिर सांस प्रॉब्लम है तनाव तो मथुरा के मुंह कप रहे तो जोर से मुंह नहीं हमारे हाथवा हमें अपना समझ तनाव जब ये खाते मुश्किलों से नंबर झटका में लाल हाँ फोटो शायद देखे नहीं जाए अब आप फोटो तनाव इधर धीरे साला अपना पैर पर खुला है उसे ना बंद करा उधर के बाद कब के लगा फोन था अरे नॉर्मल बच्चे लोग होता है वाई में लो मसूर बोल वो ठीक लोगों को फोन कर दिया
एकरा करे पड़ी दाल कम करता एकरा के ई सब भरा मन तो ये जो भरा सब दिए इन चावल का चावल से भर जाते हैं हमें बड़ा देख के लगा आदमी भर दिन ना अभी बड़ा पर तो चावल नीचे बना तो तने फरिया जाता है हाथ दलिया में पानी डाल के नहीं हम ले लेगा बोलने लगा क्या करो फिर दिन के दाल बात तो शाम को चला देते शाम वाला बात दे दो दिन में चला देते बच्चे बच्चों का काम आता है ये करना पड़ेगा प्लास्टिक में बनाई सब खराब हो गई प्लास्टिक में बांधने के बाद नहीं कहा जगह की मुझे बात चल रही ना बस में ना पता तो क्या बच्चों का ना शाम के फिर बना करा के गरम में इसलिए क्या बात समझा एक देखा एक वो रखो तो ठंडा आ जाए शाम तक आई गरम फिर बनाई जैसे मिक्स करी कुछ करी वो मामला गड़बड़ हो गई क्या बोलोगे मिसमैच हो जाए खराब कर दी बस दाल बढ़िया बना रहा हम्म। कम जो से बेसी अगर तारा का ठंडा के दे तब जाकर सही रही एक मिक्स कोई लम मिक्स पसंद बहुत कम देता है अरे बहुत कम दिले भाई सत्तर पर जब वो ना तो सिलेंडर की ना साइड में रखो सिलेंडर किना जी मरते हैं 4 दिन बाद में सिलेंडर किन दिया ही ना बात नहीं थे कंफर्म तो करो पहले गाड़ी केना चली ये तो ऊपर बड़ा कपड़ा बड़का प्रॉब्लम तो ये बात है सही बात संदा में गाय बंद सप्लाई में काम जो नंबर लिए बोले उठा के डाल दे वो चीज ना किने के पड़ी तावा चौकी तावा चौकी तो है ये होली जाए ना तावा हो जाए कटाई जाए सब बहुत बड़ा जाए सब बन गई चौकियों बनी तो वो बन गई कैसे तावा बनी पता क्या प्लेट बा नीचे हिट कर दिया इधर वैसे लगा चोखा बन जाता नीचे पानी नीचे और डाल देगा हां तो कैसे बना रहा प्लान में तावा वही बन लगभग में काट दे आप ना पीठ कटा हुआ है फिर देखो तो मेरी रोटियां जल्द सड़ जाएगी उसना मैं जिस हथौड़ी में लो जी चापट लेखा वाली देखा गोल 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 हुई जमीनी पर अब प्लेटवा तरह गोल काट करके ऊपर वो जमीनिया में गोल बना कर गड़ा है और पानी भरा जाला आज प्लेटवा रखा दे तो कटिंग सेट से सेंटरवा में खरीद कर किल रहा बना तो जैसे जैसे पनिया गरम हुई तो हुआ कटिंग सेटवा गया छम छम जो लोहट लोहवा जंबा को सही नीचे भाग गई तीसरी पनिया एक नंबर बने लगना बाकी ना कि मार्केट के अब सच्चा लेखा पंडी हमें मार ना बैठी ना तो वो हरे घूमे बा जेने मांगो करके गांव में बड़ी सुंदर बना 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 के सीधा होल्डर एक होल्डर जो लाई हमें बेंड जोड़ दा रहने को बने लग लाइन लग गई गाढ़ा के नीचे पनिया रही ना पनिया के हवा में भर रही ओकर ऊपर अटवा ऊपर गरम करबो ना नीचे नीचे बगल कोई चीज जेना ठंडा होके ना ओकरा पानी कोई इतना भाग लगे तो हटा के रहे हमने देखा बोला होल्डिंग जैसे देखा अब तारा के बता दें जैसे होल्डिंग को मिला हुआ तो लगा तो कि होल्डिंग से बंद बा या तो मशीन से बंद कर बा तो
जैसे तुम मरबा ना वेल्डिंग ऊपर हिट हुई तो से ऊपर गणिया नीचे बगल और अभी रेलिंग वाला कुछ सीढ़िया वाला बना मतलब वेल्डिंग वाला तक क्या हो गया ग्रेटिंग कहा गया लाई रहेंगे गिरिलवा रेलिंग वाला को तो ग्रेटिंग ग्रेटिंग कहा जा रहा है जानला सबसे जे डब्ल्यू में काम करने बने खाली वजह प्लेटफॉर्म उनके बनाओ था स्ट्रक्चर का काम होता है तो प्लेटफॉर्म पर ये लग वही करेला बाप रे अंधा पानी जो है बस हेवे पाइप ये वो पाइप अकेले वो दो छह आदमी के नाम पर काम और ठीक है होता होल रही इतनी इतना जब बटर बांध के ना इतने होल रही है और सुने तो इतना 1000 प्रेशर रहा उनमें प्लांट के पाइप से थोड़ा कवर कर मुझे तो के तरह में चलत थी आधा खा खा के आधे बचल होनी में वेल्डिंग को मार नहीं तो बुझाई थी साला फक फक करी ना हमें डर लगा वाला रेलिंग में जरा होला ना सड़ गए होला अरे यार
Yes. So I think we are here on we are here in the main room. Yeah. So with regard to the scenario, can somebody tell me like what finding they have got? Yeah, I think Asif Sultan. यस सर। Yes, please. सर कुछ कुछ जॉब फैक्टर्स थे। सबसे फर्स्ट था कि सर इनफ ट्रेनिंग नहीं मिला था। जैसे राजेश जो था न्यू वर्कर था, हाँ प्रॉपर हाँ। ट्रेनिंग नहीं मिला था और मशीन हैंडल करने के लिए उसे दे दिया गया था। तो ये हम्म, जॉब फैक्टर है। दूसरा सर प्रेशर टू वर्क फास्ट। जो मैनेजर था उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि काम करना है। और जैसे कि एक वर्कर था राजेश, उनको एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी, दूसरी बात कि उनको प्रॉपर प्रेशर था और वो बिना कोई सेफ्टी को चेक किए हुए वो लगातार काम किए जा रहे थे। तीसरा था हेवी लिफ्टिंग विदाउट द राइट टूल्स। विक्रम Yes. और उसके साथ में और दो वर्कर थे, उन्होंने बोला था कि उनके बैक पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो भारी सामान उठाया है उन्होंने बिना टूल के या फिर प्रॉपर टूल नहीं था। तीसरा हॉट एंड अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट। जो अंदर का जो एनवायरनमेंट था उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हॉट हो गया था। नेक्स्ट है स्किपिंग ब्रेक्स। वर्कर्स लाइक अर्जुन अर्जुन जो थे वो बहुत ज्यादा ब्रेक ले नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा काम कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो ये जितना था सर ये जॉब फैक्टर्स था। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट आता है सर कि जो मैनेजमेंट था वो स्पीड को प्रायोरिटाइज किया ओवर सेफ्टी। वो सेफ्टी को देखा नहीं, वो स्पीड के ऊपर काम किया। जैसे कि जो मैनेजर थे मिस्टर शर्मा, उन्होंने बोला कि उन्हें काम चाहिए डेडलाइन के पहले। नेक्स्ट था कि उन्होंने वो जो यूज कर रहे थे वो ओल्ड सिस्टम था एंड टूल्स था, टूल जो था वो पुराना हो गया था। और बैड रिपोर्टिंग सिस्टम भी था। जो मीरा जो सेफ्टी ऑफिसर थी, उसे अगर कोई रिपोर्ट किया जाता था तो वो उसको लाइटली लेती थी, वो उसको सीरियसली लेती नहीं थी उस सेफ्टी प्रॉब्लम को। जिसकी वजह से कोई भी अगर टूल खराब हो गया या कोई भी सेफ्टी प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करने में डिले होता था और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम भी किया जाता था। एंड नेक्स्ट है लैक ऑफ अथॉरिटी टू इन्फोर्स रूल्स। जो रूल था, जैसे अंकिता उसे पता था कि जो वर्कर लोग हैं वो ब्रेक नहीं ले रहे हैं, ब्रेक को स्किप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बट फिर भी वो उस चीज को इन्फोर्स नहीं की सेफ्टी को और उस चीज को नजरअंदाज की। उसके बाद आता है इंडिविजुअल फैक्टर्स में। सबसे फर्स्ट था लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ये इंडिविजुअल फैक्टर में आता है, जैसे कि राजेश था, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद आता है फटी, मतलब अर्जुन जो थे वो बहुत थके हुए थे, ब्रेक नहीं ले रहे थे, वो काम कर रहे थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। रिस्क टेकिंग बिहेवियर। विक्रम जो है वो अनसेफ मेथड यूज कर रहे थे लिफ्ट करने के लिए, जिनकी वजह से उनको कमर में पेन भी हुआ था। एंड नेक्स्ट है फियर ऑफ गेटिंग ब्लेम्ड। जो मिस्टर वो जो मीरा जो थी सेफ्टी ऑफिसर, वो ब्लेम कर देती थी। इस डर की भी वजह से वर्कर लोग जो है वो कंप्लेन नहीं करते थे। तो ये सारा था सर इंडिविजुअल फैक्टर्स। एक मेरा पॉइंट है सर that Arjun, the workers, is alone is working excessive overtime, which leading to fatigue and a mistake at the control panel. So he was the only one who is doing the excessive work as per scenario. So as per my understanding, this should be in individual factors. कौन सा पॉइंट था? Hello. Individual factors था. Yeah, yes, very इंडिविजुअल very फैक्टर्स का good. दूसरा था Asif ना, Sultan, I फटी। think you have explained very well. Yeah, and so I hope looking at this point, everybody I think is posted on the WhatsApp group also about this. Yeah. So
Yeah, meanwhile, other candidate also can share their findings, please. Can share these. सर मेरा एक पॉइंट है। हेलो। बोलिए। हेलो सर। Yes, please. सर जो ये ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेमिंग वाला सर, उसमें किसने आएगा? ये इंडिविजुअल में आएगा या फिर जो आसिफ भाई ने अभी बताया ना कि ब्लेमिंग वाला, सर वो ब्लेम ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, ये क्या आएगा सर? इंडिविजुअल में आएगा? मेरे हाँ, हिसाब से ब्लेमिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, मतलब वो ऑर्ग कंपनी कल्चर ही ऐसा बना दी है। हाँ। कंपनी अगर एनकरेज नहीं करेंगी तो लोग अब पैसे अपने ब्लेम नहीं बनाएंगे। ओके। That is organization factor. Blaming. और सर ये अर्जुन जो एक वर्कर थे वो बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे, तो सर ये इंडिविजुअल फैक्टर्स में आएगा ना, या हाँ, फिर इसको that हम is लोग जॉब फैक्टर्स में भी रख सकते हैं? नहीं, that is इस individual factor. इसमें सर सर इसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों आएगा ना। मतलब बंदा तैयार है, वो इंडिविजुअल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन वर्किंग आवर्स। हाँ अगर हाँ अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर कुछ उनको बताया गया है कि आप लंबा काम किए हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है। बिकॉज सर यहाँ पे जो अर्जुन जो काम कर रहा है, अर्जुन वर्किंग एक्सेसिव ओवर टाइम which leading to fatigue and mistake at the Yes. control panel. So this is the individual choice he's choosing to work excessive overtime. Because as per scenario, he's the alone who chooses to work overtime extra. Okay, and due to this fatigue situation, he did a mistake. Also, sir, there is a name girl safety officer who tried to control and he tried to implement that all safety near misses should be reported in a clear data. So she is unable to get the clear incident data. Okay, Yes. so that's why the some of them think that if we report those, so there will be some other guy will say like this, why you're reporting this or that for my area or something. So the fear of blame preventive workers from reporting near misses. So this could be individual choices because the safety officer, see the safety officer is trying to do the best, but the Yes. individual choice not to report that near misses. Yes. Yeah. So this is individual factors, sir. Yeah. I Individual think so. decided not to report. Not to report means he's like not giving importance. Not giving importance. But if everybody यार work, अटेंडेंस हो गया कि नहीं? yeah, sure. Yeah. Yeah. So just a moment. Just a moment.
Yeah, yeah, sorry for the interruption. I hope everybody's here now. Okay. You are able to hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, good. Very good. Yeah. So I think we have seen an example here of individual factor and organization factor. So with regard to that, in the exam also, there will be a scenario like in August 2024, August 2022 का जो हम लोग ने सिनारियो देखा, उसमें भी ये दिया गया था कि आपको आइडेंटिफाई करना है इंडिविजुअल फैक्टर, जॉब फैक्टर एंड ऑल्सो organization factor. Okay, but we will solve that tomorrow. हम लोग ये कल discuss करेंगे. I think I can just would like to see from other candidate who have written the answer for this. So I think I can see here Shea Guevara. Yes, Shea Guevara. Is Shea here? Yes, sir. Yeah. Can you please discuss about it? Sir. Sir, first, this is combined answer from room number 1. Coming to individual factors, the first one is lack of risk perception. Yes. Because as per the scenario, just a second, sir, I'm opening the scenario also. So the new workman, he doesn't have awareness on the machine. So without knowing the potential hazards, lack of risk perception, he has started the work. Okay. And the second one is language barrier. Yes. So language barrier can comes under that he's not well educated, yeah, he doesn't have the particular talent to go through to operate the machine, to get the procedures known to operate the equipment. Yes. Or next point is stress, which was showing as the production manager, Mr. Sharma, walks into the factory stressing about meeting the monthly productivity targets. So they're prioritizing this work, which leads them to take more stress. Yes. And sir, we have written ergonomics in individual factors, but will that ergonomic comes under organizational or job factor or individual factor? That we are having a doubt. Yeah, means company if not providing proper ergonomic arrangement, that's organization factor. But the individual, if it is not following, Sir. then it becomes individual factor. Okay. So organization did not provide that machine, so he was doing manually. So doing the task as per the resources comes under job factor also, both job and organization factor also. Yeah, can you come back again? The organization did not provide the lifting equipment. Yes. So that is organization factor. Yeah, correct. So organization did not provide the lifting equipment, so it has become the general duty. Yeah. It has become the general job to perform. So does it comes under job factor also? No, that is organization factor. The company is not providing. Okay. Yeah. And in individual factors, no reporting of incidents.
Yes. That indicates there is an EHS officer. That means safety procedures are there, but no one is reporting them. Yes. Yes. सर थोड़ा सा ऊपर चला गया आप, Hmm. ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स। Yeah. हाँ. ऑर्गेनाइजेशन में लेस प्रायोरिटी टू सेफ्टी based on all the scenarios. What was your question here? Ready? क्वेश्चन है सर, लेस प्रायोरिटी टू सेफ्टी हाँ. सभी Yes. सिनारियोस में जो दिया हुआ है तो हाँ. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में जाएगा। हाँ. Because commitment, because organization is not giving importance to safety. That is organization factor. हम्म, Like no proper SOP, no incident reporting system. हम्म, जैसे नो रिसोर्सेस है, वो लिफ्टिंग Right. इक्विपमेंट नहीं है और आउटडेटेड सिस्टम्स है, पूर कनेक्टिविटी है, Yes. तो रिसोर्सेस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। हाँ. हाँ, और ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड नहीं किया फुल प्लेज्ड में प्रायर टू स्टार्टिंग ऑफ वर्क। Yes. और फैटिग मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि ब्रेक्स नहीं है लोगों के पास, और वर्किंग लॉन्ग आवर्स, सो फैटिग मैनेजमेंट प्लान भी नहीं है। और हाँ. इसके पास फाइनेंशियल बजट कुछ एलोकेशन ही नहीं है सेफ्टी के लिए। हाँ. तो इसमें सभी में मेंशन किया गया कि सब प्रोडक्टिविटी के वजह से वर्कलोड ज़्यादा हो गए, स्ट्रेस हो गए करके, तो मतलब इन लोग का सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी के बीच में कुछ बैलेंस नहीं है। हाँ. Yes. That is organization factor. हाँ No balance. हाँ, ये सब भी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स ही पढ़ रहा हूँ सर अभी। हाँ. हाँ, और लास्ट है ये फियर ऑफ ब्लेम इंसिडेंट्स रिपोर्ट करने के लिए, हम्म. क्योंकि उधर प्रॉपर सेफ्टी कल्चर अडॉप्ट नहीं किया है, तो इसलिए लोग डर रहे अगर कुछ ब्लेम गेम Yes. होगा करके। तो जॉब फैक्टर्स में आप बोला ये नहीं आएगा एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम, तो नहीं निकाल देंगे इसका। और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, और आफ्टरनून तक हाई टेम्परेचर्स हो रहे, हाँ. और कोई भी न्यू वर्कमैन रहेगा उन लोग का कोई असिस्टेंस नहीं है क्योंकि दूसरे के पास वर्कलोड है। भाई ये नो प्रॉपर वेंटिलेशन और हाई टेम्परेचर एट वर्क ड्यूरिंग आफ्टरनून, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। वेंटिलेशन नहीं जॉब होने की फैक्टर वजह है से ना, जॉब फैक्टर है। हाई टेम्परेचर हो जा रहा था। हाई टेम्परेचर्स और जॉब टेम्परेचर में, क्यों क्यों जॉब ज्यादा में बढ़ रहा था? वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से ना। इट नहीं मीन्स नहीं दोनों पॉइंट सेम है, आपका कहना ये है? नहीं नहीं हाँ नहीं, मेरा। मैं बताता हूँ, देखो मैं कैसे लिखा है। टेम्परेचर एक्सटर्नल फैक्टर है, हम्म। धूप है इसके वजह से हाई टेम्परेचर हो गया, वो जॉब फैक्टर है। तो हाई टेम्परेचर होने के बाद हमको कुछ प्रिकॉशन करना है, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, वो भी नहीं प्रोवाइड किया, वो सेकंड फैक्टर है। एक ओके। वेंटिलेशन है इंटरनल है, हाई टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल, मतलब वेदर कंडीशन के हिसाब से वो हाई टेम्परेचर है, इसके हिसाब से दो लिखा है इसे। ओके ओके। Yes, please. Yeah. Go ahead. Ready?
सर लास्ट पॉइंट है, नो असिस्टेंस फॉर न्यू वर्कर्स ड्यू टू वर्कलोड। दैट इज, हाँ ये जॉब फैक्टर में आएगा, मतलब लोग दूसरे। हाँ हाँ, वर्कलोड, यस, रिलेटेड टू, मतलब वहाँ पे मैन पावर प्रोवाइड नहीं किया था, यस, गुड। Yeah, so I hope everybody understood now about job, individual, and organization factor. सर आई हैव ए डाउट मेरे पास, मतलब एक क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट वाला पैराग्राफ जो दिया है सिनेरियो में सर, हाँ सर इन द एचआर ऑफिस मीरा, जो सेफ्टी ऑफिसर है, हाँ review the incident report but frustrated to the lack of the clearance incident data। उसके पास कोई डाटा नहीं होता है, क्लियर डाटा, उसकी वजह से बोल रही है। और many near miss go unreported due to fear of blame। जो लोग डर रहे हैं ब्लेम करने के लिए, हाँ मतलब रिपोर्ट करने के लिए, सॉरी सर। तो सर जैसे कि स्पष्ट डाटा कोई नहीं मिल रहा है, उसके जो सेफ्टी ऑफिसर है वो उससे निराश है, और उसके पास नजदीकी कोई घटना हो रहा था तो उसका मतलब जो भी इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है वो कोई भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है कि ब्लेम के डर से। तो ये और क्या आएगा सर, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर आएगा या फिर इंडिविजुअल, क्या आएगा सर? इसके में थोड़ा सा डाउट हो रहा है मेरे को। हाँ हाँ, फिर से बताएंगे कौन सा फैक्टर आप बोलिए। सर जो एक लास्ट वाली पैराग्राफ है, हम्म in the HR office, Mira, the safety officer, reviewed the incident report. She frustrated by the lack of the clear incident data, as many near misses go but unreported due to fear of blame। फियर ऑफ ब्लेम, तो वो जी, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। यस यस, करेक्ट, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज recommending this, means organization is मतलब favoring the blame culture। ओके। बट सर क्वेश्चन ये है कि वो जब इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो उनको प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाता रिपोर्टिंग की यस। वजह से, इम्प्रॉपर रिपोर्टिंग है, वो किस में हाँ, आएगा? किस में आएगा सर? वो भी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे हिसाब से आएगा, क्योंकि हम्म, ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेफ्टी कल्चर का एडॉप्शन नहीं किया है। यस, इट मीन्स मे बी, बट सर उस पे क्या तथ्य देते हैं? हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन ब्लेम कल्चर को फेवर करता है तो वो दैट इज बिकम्स ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। मीन्स ब्लेम कल्चर, अगर इन जनरल ऑल ओवर ब्लेम कल्चर है, दैट इज। बट सर एक क्वेश्चन है, हाँ जो नियर मिस या इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जब डाटा निकाला जाता है तो वो डाटा सफिशिएंट नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये किस में आएगा? इनसफिशिएंट डाटा अगर कोई अवेलेबल हो इनसफिशिएंट डाटा, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में है। Are you able to hear my voice? Sorry. यस सर। यस सर। Yeah, just a minute here. Some microphone error. What one? अच्छा, अगर उसके पास प्रॉपर डाटा नहीं है तो डाटा तो इसलिए नहीं है ना क्योंकि कोई बता नहीं रहा है। जो नियर मिस हुआ था वो रिपोर्ट नहीं हुआ ब्लेम की वजह से, तो ये इंडिविजुअल फैक्टर भी नहीं आ सकता या है। वहाँ कल्चर जो है ना सेफ्टी का, वो एडॉप्ट नहीं किया कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा ना कि कल्चर नहीं वैसा तो बनाया नियर नहीं। मिस, मान लीजिए किसी वर्कर के साथ नियर मिस हुआ, वो बता भी तो नहीं रहा है कि उसके ऊपर ब्लेम हो जाएगा, ब्लेम हो तो जाएगा। ये इंडिविजुअल फैक्टर है, ये नहीं है।
नहीं, कल्चर नहीं, खराब है ना, नहीं बता रहे हैं, इसका हाँ मतलब वो वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा डर ये। रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से डर है कि ब्लेम हो जाएगा, मतलब कहने जाएंगे तो हमारे ऊपर बोल दिया जाएगा ऐसा करके। उसको डर है, इस चीज का फियर है, तो इसकी वजह से तो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा ना। कि अगर अगर ब्लेम वगैरह का ऐसा कुछ नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर रिपोर्टिंग होता है कि मतलब कुछ नहीं, उसको ब्लेम नहीं किया जाएगा, रिपोर्ट कर रहा है तो उसको सुना जाएगा, देखा जाएगा, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तो फिर वो इंडिविजुअल में आता है। मे आई थिंक। रिपोर्टिंग सिस्टम सही नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है। देखो यार, as per scenario, this will come in an individual factor. If you read the scenario, there is nothing is talking about organizational factor. This is fear. Fear comes from thoughts, and मेरा thought तो वही कहना है is ना saying that I कि will वो not नहीं report कर any रहा near है, miss. Yes, डर से नहीं exactly. कर रहा है तो उसकी गलती है ना। Exactly. अब सर आएंगे, पूछेंगे। सर से क्लियर कर लेंगे एक बार, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो। Yes, please. Yeah. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो नियर मिस होता है उसका ब्लेम की वजह से, डर की वजह से कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो सर ये इंडिविजुअल फैक्टर में आएगा या ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में आएगा? हाँ, वो तो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में आएगा, कोई डर के वजह से नहीं जा रहा है, बिकॉज दैट इज बिकम्स ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एनकरेजिंग रिपोर्टिंग, नॉट एनकरेजिंग रिपोर्टिंग। तो जैसे हम लोग ने ये अगस्त 2022 के सिनारियो में देखा था, उसमें दिस अबाउट द ऑयल प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी फील्स कंफर्टेबल, everybody feels comfortable talking with the shift manager and rig manager. Yeah, so for that I think we'll have again more discussion tomorrow. कल हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, and we will see some practical examples also for job, individual and organization. ओके सर। Okay. ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। Okay, okay. ओके सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। और Good कल night, sir. हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। सर गुड सर कल नाइट। एक बार इसको कुछ बोल रिपीट रहे थे करिएगा। सर कल? हाँ हाँ, श्योर श्योर, विल रिपीट दिस टॉपिक अगेन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कल का असाइनमेंट्स जो लिखा हो, एक बार वो भी आप कभी रिव्यू करके कमेंट लिख देगा तो कल हम Yes, सीख yes. लेंगे सर इसका। Sure, sure. Tomorrow I'll review and I'll give the और comment. सब मैंने भी सबमिट किया था, वो आप रिव्यू Yes. कर देंगे। Sure, जी sure. जी यस सर, जी, यस सर। सबका सबमिट होगा। Yeah, I will do it tomorrow, right? We will discuss. Okay. ओके Thank सर, you. थैंक यू Thank सर, you. गुड नाइट। Good night. Okay, sir. गुड Good नाइट night, सर। sir. Good night. ओके, गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। Good night. गुड नाइट सर। Good night.